کہیں دور شمال کی خاموش فضا میں قراقرم کے سینے میں چھپی ہوئی ایک جادوئی وادی نلتر، جہاں وقت ٹھہر سا جاتا ہے، آوازیں مدھم ہو جاتی ہیں اور فطرت اپنی اصل شکل میں نظر آتی ہے۔ راستہ دور ضرور ہے مگر مشکل نہیں۔ ویلی تک تو بہترین سڑک بنی ہے، لیکن جھیلوں تک کا راستہ ایڈونچر ہے۔ جھیلوں تک راستہ ایسا ہے کہ جیسے فطرت آپ کا حوصلہ آزماتی ہو، مگر جو اس امتحان میں پورا اترے اس کے لیے نلتر وادی اپنے راز کھول دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ آج کے ولاگ میں ہم آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں ایک ہی جگہ پر 7 جھیلیں موجود ہیں اور انتہائی خوبصورت، دلکش اور خوشنما رنگ والی جھیلیں ہیں۔ نلتر صرف ایک وادی نہیں، یہ قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہے جہاں ہر درخت، ہر پتھر اور ہر آواز میں ایک کہانی چھپی ہے۔ نلتر کی 7 جھیلیں ہیں، ہر ایک الگ رنگ، الگ انداز اور الگ کیفیت رکھتی ہے۔ سترنگی جھیل، قدرت کے رنگوں کا ایسا امتزاج جیسے کسی مصور نے کینوس پر پانی کو پینٹ کر دیا ہو۔ برو جھیل، سکون کا دوسرا نام، جہاں نیلا پانی دل کی تھکن اتار دیتا ہے۔ اور فیروزہ جھیل، جیسے آسمان نے خود کو زمین پر اتار دیا ہو۔ میں موجود ہوں اس وقت جناب علی نلتر ویلی کے اندر، اور نلتر ویلی گلگت بلتستان کے اندر موجود ہے۔ جیسے ہی گلگت کا شہر آپ تھوڑا سا کراس کرتے ہیں، ساتھ ہی آگے نومل کا شہر ہے، ادھر سے آگے آپ کو جیپ لینی پڑے گی اور پھر آپ یہاں تک آ سکتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت اور بہترین جگہ، آپ میری دیکھ بھی سکتے ہیں۔ واقعی قدرت کا یہ انمول شاہکار ہے جس کے اندر پانی کے مختلف رنگ ایک ہی جھیل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ زبردست، سبحان اللہ جناب، ماشاءاللہ۔ یہاں آنے کا راستہ کیا ہے، یہاں ہوٹلوں کی رہائش مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی، کھانے پینے کا یہاں پہ کیا انتظام ہوگا، تمام انفارمیشن آپ کو اس ولاگ میں بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ولاگ۔ یہاں کا حسن صرف جھیلوں میں نہیں، ان پہاڑوں میں اڑتے عقاب، جنگلوں میں کھاتے پھول نایاب اور خاموش فضا میں گونجتی پرندوں کی آوازیں، یہ سب مل کر نلتر کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ سادہ، محنتی اور بے حد مہمان نواز ہیں۔ ان کی مسکراہٹیں اس وادی کی خوبصورتی کو اور بھی نکھارتی ہیں، اور ان کے دل میں مہمان کے لیے بے پناہ محبت ہے۔ نلتر کا اصل حسن جون سے ستمبر کے درمیان نکھرتا ہے، لیکن یاد رہے یہاں آنے کے لیے صرف سامان نہیں، دل میں جنون اور آنکھوں میں قدرت کو دیکھنے کا شوق ہونا ضروری ہے۔ نلتر ویلی جانے کے لیے گلگت شہر سے نومل تک قراقرم ہائی وے پر ہی جانا ہوتا ہے۔ یہ سڑک دنیا کا عجوبہ ہے جو پاکستان کو چائنا سے ملاتی ہے، اور اسی سڑک پر آگے جا کر ہنزا، عتاباد جھیل، پاسوکون، شمشال کا راستہ، سست، اور پھر جا کر خنجراب نیشنل پارک آتے ہیں۔ لیکن نلتر جانے کے لیے گلگت سے صرف 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر جا سکتے ہیں۔ دور سے ہی نومل کا قصبہ دریا پار نظر آتا ہے، دور دور ہرے بھرے درخت نظر آ رہے ہیں۔ نومل جانے کے لیے ہمیں قراقرم ہائی وے چھوڑنی پڑے گی اور پل کراس کر کے نومل کے قصبے میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں بہت بڑی آبادی بستی ہے۔ نیچے نومل میں بھی موسم گرم ہے، اور یہاں سے ہی آپ کو نلتر ویلی کی جیپیں بھی مل جاتی ہیں۔ نلتر ویلی جانے کے لیے ہمیں اوپر کے کیچ سے نیچے اترتے ہیں، نیچے جو ہے وہ نومل کا ایک آبادی ہے، تو وہاں سے ہی آگے ہم نے اپنے نلتر کا سفر جو شروع کرنا ہے۔ یہاں سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر نلتر موجود ہے۔ کافی حد تک تو اب سڑک بن چکی ہے، راستے کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو 45 منٹ کے تقریباً فاصلے کے اوپر ہمارا ہوٹل ہے، اور اس کے بعد 1 گھنٹے کی مزید ڈرائیو لگے گی ہمیں سترنگی لیک نلتر ویلی میں جانے کے لیے۔ تمام جو مسافر ہیں ہمارے تیار ہیں، اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ یہاں پہ یہ 4x4 پراڈو ساری گاڑیاں جو ہیں ہیوی چلتی ہیں، تو انہی کے اندر ہی جایا جا سکتا ہے۔ تو چلیے اپنا سفر کا آغاز کریں۔ صرف 11 کلومیٹر آگے ہماری منزل نلتر ویلی ہے۔ ہمارے ساتھ گروپ ہے
कोस्टर हम यहाँ पर ही खड़ी कर देंगे और यहाँ से आगे जीपों पर जाएंगे। सड़क बनने से पहले ये सिर्फ 4x4 गाड़ियों का रास्ता था, लेकिन अब ये बेहतरीन सड़क में तब्दील हो चुका है। कराकरम के बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान ये बेहतरीन सड़क भी अजूबा है, जो बल खाती हुई इन पहाड़ों के दरमियान से गुजरती है और इसके साथ साथ नलतर वैली की झीलों से आने वाली नदी है। सड़क तो आप देख ही रही हैं, यहाँ कोई भी गाड़ी आसानी से आ सकती है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। देखने में आम से लगने वाली ये सड़क नए ड्राइवर्स के लिए एक चैलेंज होती है। एक तरफ तो बुलंदी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और दूसरी तरफ बार बार मोड़ आते हैं, जहाँ गाड़ी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इस आसान नजर आने वाली सड़क पर तेज़ गाड़ी चलाना किसी भी हादसा का पेशखेमा हो सकती है। यह रास्ता तो 11 किलोमीटर का है, मगर अपनी खूबसूरती की वजह से यह रास्ता सयाहों के दिल मोह लेता है। नोबल से आधा घंटा या 40 मिनट की ड्राइव पर ही वादी नलतर में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ बहुत से होटल बने हैं, रात रहने का कोई मसला नहीं। यहाँ होटल बहुत ज़्यादा लग्जरी तो नहीं, लेकिन वादी नलतर में यादगार रात गुजारने के लिए बेहतरीन है। हमने यहाँ रॉयल नेस्ट होटल में क़याम करना है। अभी दिन के 12 ही बजे हैं। हमारे साथ आए सयाहों की जीपों को हमने आगे झील की जानिब भेज दिया है। पहले हम अपना होटल चेक कर लें और रात के खाने का इंतज़ाम कर लें, फिर आगे झीलों की तरफ चले जाएंगे। रॉयल नेस्ट होटल में अच्छे, कुशादा और साफ़ सुथरे कमरे बने हैं। अगर आप भी नलतर वैली में रहना चाहते हैं तो ये होटल आपके लिए भी बेहतरीन चॉइस होगी। चलिए अब झीलों की तरफ चलते हैं। यहाँ से आगे कच्चा और 4x4 का जीप ट्रैक है। असल में नलतर वैली का हुस्न तो यहाँ से शुरू होता है। मुझे तो ये इलाका काफ़ी हद तक कुमराट वैली जैसा लगता है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दरमियान में बहने वाले दरिया का रंग बहुत खुशनुमा है और इर्द गिर्द जंगल भी मौजूद है। ये रास्ता भी इतना लंबा तो नहीं, लेकिन कच्चा होने की वजह से 1 घंटा तो लग ही जाएगा। इस रास्ते में जगह जगह चाय पकौड़ों के लिए खैमे नस्ब हैं। इस रास्ते को एंजॉय करने के लिए भी सियाहों की बड़ी तादाद यहाँ रुकती है। कैसा है जनाब, ठीक है जी, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। करें, एंजॉय करें। वेट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। नलतर वैली को खूब एंजॉय कर रही है ये सारी टीम। जैसे जैसे आगे जंगल में जाते हैं तो यहाँ तक भी चंद होटल और रात रहने की जगह नज़र आ रही हैं। यहाँ रात रहने वाले यकीनन कुदरत के इंतहाई खूबसूरत मनाजिर में रात गुजारते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जंगल, पहाड़ और दरिया की आवाज़ें हैं, जो सारी ज़िंदगी एक याद की सूरत में उनके साथ रहती हैं। कुमराट वैली में भी जंगल है, दरिया है, साथ सड़क है, लेकिन यहाँ जंगल ज़्यादा घना तो नहीं, मगर नीचे की सरजमीन सब्ज़े से भरी है और दरिया का नीला रंग सियाहों को माइल करता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये किसी पुराने सालाब के आसार नज़र आ रहे हैं। सैलाब में बहकर आने वाले पत्थरों ने यहाँ मौजूद दरख्तों को बड़ा नुकसान पहुँचाया है, जिसकी वजह से जंगल में दरख्तों की तादाद में वाज़ेह कमी नज़र आ रही है। ये कुदरत है, गाहे बगाहे यहाँ के नशेब व फराज तब्दील होते रहते हैं। जब यहाँ ये पत्थर पानी में बहकर आए होंगे तो जाने क्या सीन होगा। ये दरख्त सैलाब के भी आड़े आ जाते हैं। खुदा ना खास्ता कोई भी घर या आबादी इनको रोकने की सलाहियत नहीं रखती। दरख्तों ने इन पत्थरों को अपनी जान की कुर्बानी देकर यहाँ पर ही रोक लिया है। दोनों पहाड़ों के दरमियान ये सरसब्ज खुले मैदान हसीन नज़ारा देते हैं और इनमें चरने वाले जानवर इन्हें आबाद रखते हैं, यहाँ ज़िंदगी की नवीद सुनाते हैं। जैसे जैसे बुलंदी की तरफ बढ़ते हैं, नलतर वैली की खूबसूरती में इजाफा होता रहता है। कभी नशेब व फराज से भरपूर छोटी मोटी सरसब्ज पहाड़ियाँ आती हैं, तो कभी रास्ता में पानी के झरनों से ही गुजरना इस सफ़र को मज़ीद यादगार बना देता है। यहाँ कहीं भी
पानी खड़ा हो जाए तो ये इंतहाई खूबसूरत रंग का मजहर होता है। सतरंगी झील से पहले भी 1-2 झीलें आती थी, मगर अब सैलाब में आने वाले पत्थरों की वजह से उनका हुस्न भी ख़राब हो चुका है। 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद यहाँ की बड़ी और मशहूर झील सतरंगी झील आती है। अपने नाम की तरह वाकई इस झील में मुख्तलिफ रंग नज़र आते हैं। इन रंगों की वजह झील में लगी मुख्तलिफ रंगों की काई है और झील का एक जगह रुका हुआ पानी जो इंतहाई साफ और शफाफ है। इस क्रिस्टल पानी में कहीं सब्ज, कहीं पीला, कहीं नीला रंग और कहीं आसमान और बादलों की झलक नजर आती है। इसी वजह से इसे सतरंगी झील कहा जाता है। इस पहले पड़ाव पर सयाह रुककर सतरंगी झील के किनारों पर लुत्फ अंदोज होते हैं, तस्वीर बनवाते हैं और झील के अतराफ में घूमकर कुदरत के खूबसूरत नज़ारों को करीब से महसूस करते हैं। झील पे पहुंच के ये छोटे छोटे बच्चे हर जगह टूरिस्ट पॉइंट की तरह यहाँ पे भी मौजूद हैं जो अंडे बेच रहे होते हैं। तो यहाँ आके गधागरी के बजाय आप इनसे अंडे ख़रीद लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ आने के बाद बहुत ही आप कहने के एंजॉय करते हैं लोग इस कुदरत के शाहकार को देख के। आप यकीनन लुत्फ़अंदोज़ हो गए तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। सतरंगी झील के बाद अगली झील ब्लू झील है। यहाँ से दोबारा जीप में बैठकर आगे जाना है। ये रास्ता ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 10 मिनट में ही ब्लू झील तक पहुँच जाएगा। अगली झील पर पहुँचने के बाद वाकई इसका पानी हैरान कर देता है। इस झील का पानी बिल्कुल नीले रंग का है। कुदरत का हसीन इम्तिजाज है कि चंद मीटर दूर सतरंगी झील का पानी और ब्लू झील का पानी बिल्कुल मुख्तलिफ रंगों का है। यहाँ भी सयाह थोड़ी देर रुकते हैं, एंजॉय करते हैं और यादगारी तस्वीर बनवाते हैं। सतरंगी झील क्रॉस करने के बाद आपको हार्डली 10 मिनट के बाद ये ब्लू लेक आ जाती है और इससे पहले दरमियान में छोटी सी एक और लेक थी, उसका नाम था परी लेक। और यहाँ से फिर मज़ीद आधा घंटा पौना घंटा यहाँ के जो गाइड है वो बता रहे हैं कि ऊपर जाने के बाद आती है फेरोज़ा लेक। तो उसके बाद मज़ीद 1-2 और लेक्स हैं। तो ये बड़ा ब्लू लेक का पानी जो है वो वाकई तौर पर बिल्कुल ब्लूइश है, जैसे कि आप बैकग्राउंड के ऊपर देख सकते हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम है। सतरंगी के अंदर मुख्तलिफ रंग थे, जिससे परी का रंग बिल्कुल इससे मुख्तलिफ कलर का था और ब्लू लेक का रंग है जो है ये बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। अच्छी खासी बड़ी झील है। तो जो नलतर वैली का पॉइंट है जीप वाला, वो ये सबसे आखिरी पॉइंट है। यहाँ तक आके जीप जो है वो रुक जाती है। इसके बाद लोगों को फ्री टाइम दे दिया जाता है, चाहे वो यहाँ पे घूमें, सतरंगी पे घूमें, या फिर आप ऊपर चले जाएं फिरोज़ा पे चले जाएं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपकी हिम्मत है। इससे आगे हाइकिंग करके फिरोज़ा झील है। वहाँ हर सयाह नहीं जाता, सिर्फ पैदल चलने का शौक़ रखने वाले ही इस झील का दीदार करते हैं। फिरोज़ा लेक के साथ ऊपर एक और झील भी है, इसे बड़लोग झील कहा जाता है। इसके अलावा भी बाकी मज़ीद छोटी छोटी झीलें मौजूद हैं। अगर किसी को बाकी झीलों के नाम पता हैं तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नलतर वैली एक ख़जाना है, लेकिन ये ख़जाना हम पर कर्ज भी है। इसे साफ रखें, मकामी लोगों का एहतराम करें और फितरत को इसी हाल में छोड़ें जैसे आपने इसे देखा है। नलतर सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है, एक खामोश दुआ है जो आपके दिलों को छू लेती है और हमेशा के लिए आपका हिस्सा बन जाती है। तो आइए नलतर को सिर्फ देखे नहीं, महसूस करें, क्योंकि बाज़ खूबसूरती सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए ट्रॉटर पाकिस्तान।